Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Analytical chemistry 2 class, and we are going to discuss the lab experiment 1, that is determination of acetic acid in vinegar sample. Vinegar sample, that is a very usual thing, that is called sirka, and we use it in our daily life and in our daily food supplement. And the main or major constituent of the acetic acid is of the vinegar is basically acetic acid. So vinegar is composed of the acetic acid along with some flavoring agents. That there are different kinds of vinegars are available. So how can we determine that how much amount of the acetic acid is present in the vinegar sample that we are using in the daily life? So what we can do, we can calculate the amount or the concentration of the acetic acid in the vinegar sample. So when we do the lab, when we perform this lab, what we do, we ask you to bring the vinegar that you use in the at your home, because in most of the environment and most of our houses and in our culture, we use the vinegar. So whatever the vinegar, whatever the brand you use, you can calculate or you can identify the concentration of the acetic acid in the vinegar sample. So we don't go for a single experiment when we perform it. We perform a merged of the experiment. So we don't only determine the concentration of the acid, that is the vinegar में हम जो acetic acid की concentration determine करते हैं, but also we determine the dissociation constant of the weak acid and using the Henderson-Hazelberg equation. So starting with the theory, how we can identify that acid is a strong acid or acid is a weak base. तो acid strong है, weak है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो strong and weak की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि वो एसिड जब वो ऐसे तमाम कंपोनेंट जो जैसे ही हम उनको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करने के बाद वो क्या हुए, बेसिकली तो वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर थे. यू कैन सी इट हियर एज अ एग्जांपल इमेजेस आई हैव put it here. ठीक है, लाइक HCl की अगर हम एग्जांपल लें तो HCl में एक प्रोटॉन और एक क्लोराइड आयन मौजूद है, और HCl बेसिकली क्या है, एक डाई मॉलिक्यूल मौजूद है एंड इट इज बेसिकली अ गैस. ठीक है, तो HCl अगर हम अपने सोल्यूशन में लेते हैं तो HCl तो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, लेकिन जब हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के अंदर क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है. तो अब जब वो वाटर के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एंड वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया HCl को, सो इट डू नॉट एक्ट एज अ HCl मॉलिक्यूल. तो बस जैसे ही वो वाटर के अंदर गया है वो क्लोराइड आयन अलग हो गए हैं और पॉजिटिव आयन सेपरेट हो गए हैं. So whatever the concentration of the acid now converted into the concentration of the proton, that is hydrogen ion की concentration. But जो weak acids होते हैं हमारे पास, weak acids are those that do not completely dissociate into the water. जब उनको हमने वाटर के अंदर ऐड किया, इनिशियली वो भी एन डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर मौजूद थे, तो जब उनको हमने एसिड को ऐड किया वाटर के अंदर, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि सेपरेट आउट हो चुके हैं इनटू द प्रोटॉन एंड द conjugate base, but the other particles are कंबाइंड फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर एसिडिक स्टेट के अंदर वो मौजूद है. तो वीक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. तो जो हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे थे, तो एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, एंड it is not necessary कि if there is any hydrogen ion is present in the molecule that hydrogen is acidic. ठीक है, एक चीज और होती है कि हाइड्रोजन को हमें कंसीडर करना पड़ता है कि हाइड्रोजन आयन, जहां भी हाइड्रोजन आयन है वो सारे के सारे अपने प्रोटॉन डोनेट नहीं करता. एसिटिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर, हम अगर उसके अंदर वाटर ऐड करें या नॉर्मली कंडीशन के अंदर, वो प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर, दैट इज H पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर वो क्या करें, अपने मॉलिक्यूल को लीव आउट कर सकें. सो दिस बेसिक, ये जो हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस पार्ट में से जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास क्या है, पोलर इन नेचर है. पोलर इन नेचर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड द ऑक्सीजन,
एंड दैट इज वाई ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो या तो क्या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के पास रह जाएं और ये हाइड्रोजन आयन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाए हमारे इस एसिड से। बट यहाँ पे ये जो 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, दिस आर नॉट एसिडिक इन नेचर। कार्बन एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये इस हाइड्रोजन का या ये बॉन्ड जो है हमारा नॉर्मली इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो एसिडिक एसिड में आपको 4 प्रोटॉन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ओनली 1 प्रोटॉन इज कैपेबल ऑफ एसिडिक, या हमें कह सकते हैं कि सिर्फ एक प्रोटॉन है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो जो ऐसे एसिड्स हैं जिन जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर या नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, सिर्फ एक प्रोटॉन वो रिलीज कर रहा होता है। एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या होगा, वो अपनी कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिटेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एसिटेट आयन के अंदर वो कन्वर्ट हुआ, जब हमने वाटर के अंदर इसको डिसोसिएट किया या डिसॉल्व किया तो वहां पर अब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। दैट मीन्स कि कुछ एसिड मॉलिक्यूल्स जो थे उन्होंने अपने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन, जिसके अंदर H3O पॉजिटिव करके भी हम लिख रहे होते हैं, नॉर्मल इक्वेशन के अंदर हम H पॉजिटिव करके भी लिखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है जिसके ऊपर नेगेटिव आयन है। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है, ये हमारे पास एसिड था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एसिड कौन है, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और वो आयंस जो कि वाटर के अंदर OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। अच्छा, एसिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो एसिड हैं वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर जो बेस है, व्हाट इज द बेस एंड हाउ कैन वी डिफाइन अ बेस, दैट मॉलिक्यूल दैट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है या वाटर के अंदर प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि एसिड ने जब प्रोटॉन दे दिया अब ये क्या कर सकता है, ये एक हाइड्रोजन आयन के साथ वो एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस। अभी कॉन्जुगेट बेस में रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है कि क्या करे, ये प्रोटॉन जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं या जो वाटर की वजह से हमारे पास आ रहे हैं उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाए, वापस से एसिड के अंदर। सो एक रिवर्सिबल इक्वेशन या रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुआ है। अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो एसिड डिसोसिएशन की बात है तो एसिड डिसोसिएशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं Ka से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में जो भी आयंस मौजूद हैं, लाइक हमारे पास कॉन्जुगेट बेस में एसिटेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इन दोनों की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जब हमने एसिड डाला इनिशियली क्या है, सारे के सारे एसिड हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, वो वाटर के अंदर गए, कुछ एसिड्स ने क्या किया, अपना प्रोटॉन दे दिया, कुछ अभी कॉन्जुगेटेड स्टेट के अंदर या अभी मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर मौजूद हैं। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हमारे पास सिस्टम के अंदर दैट इज एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कि अब जो है इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब मजीद एसिड जो है हायर कंसंट्रेशन में नहीं जा रहा है एंड मजीद जो हमारी कंसंट्रेशन है दैट इज द कंसंट्रेशन दोनों की एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की अब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज नहीं हो रही।
ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन रिएक्शन जो है हमारा डायनामिक रिएक्शन है, दैट इज एसिड कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा होगा बेस के अंदर, पर जितनी देर में एसिड बेस में कन्वर्ट हो रहा है उतनी देर में बेस एसिड में कन्वर्ट हो रही है। अभी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमारे पास डिफाइन कर रहा होता है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जो भी आयंस हमारे पास जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू दिस रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल मटेरियल हमारे पास ये था, इनिशियल मटेरियल में एसिड और वाटर था, तो प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो हमारे पास रेशियो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज 10⁻⁻⁴.8 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसका, हमारे एसिड का, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमें ये भी बता रहा होता है कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंड के लिए या कितनी हद तक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। स्मॉलर वैल्यू कब आती है, जब हमारे पास अपर दैट इज न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर लोअर हो और डिनोमिनेटर हायर हो। ठीक है, अगर जितना कम एसिड डिसोसिएशन की वैल्यू होगी उतना कम प्रोडक्ट में वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि वो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत लो है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक एसिड के अंदर हमारा उल्टा सीन है कि इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है एसिड की जिसने डिसोसिएट हुआ है, और बाकी जो है हमारे पास एसिड जो है मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर मौजूद है। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो किस तरीके से, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ये कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है जब हमने अभी सॉल्यूशन बनाया, कोई रिएक्शन अभी हमारे पास नहीं हुआ। ठीक है, इस वक्त ये रिएक्शन हमारे पास हुआ है, कोई दैट मीन्स कि अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब अगर हम इसके अंदर बेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो बेस क्या करेगी, इसको वो न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो जब हम बेस इसमें ऐड करेंगे, जो हमारा एसिटिक एसिड था इसके अंदर अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस उसको ऐड किया, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एसिटिक एसिड है ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और एसीटेट आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और दैट इज अगर हम आयनिक इक्वेशन को भी बैलेंस करें तो सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसीटेट आयन और यहाँ से सोडियम आयन, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, वो कंज्यूम कर लेगा। ये हमारे पास रिवर्सिबल या पार्शियली डिसोसिएशन की इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, इसने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किए, वो हाइड्रोक्साइड आयन इन हाइड्रोजन आयन के साथ न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट हो गए। और अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल इट इज वेरी सिंपल कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की साइड कम हो रही है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होते जाएंगे वैसे वैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा कन्वर्ट होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा कि हमारे पास मजीद कोई एसिड रिमेनिंग ही नहीं होगा। ठीक है, जब सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि हम टाइट्रेशन किस लिए कर रहे थे, हम टाइट्रेशन कर रहे थे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो जब सारा का सारा एसिड हमारा बेस में कन्वर्ट हो चुका होगा उस वक्त हमारे पास नॉर्मली जो है नॉक्सिन वगैरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, बट हम क्योंकि पोटेंशियोमेट्रिकली इसको डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहला काम तो आपके पास यही होगा जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि पहले अगर आपने विनेगर के सैंपल को टाइट्रेट करना है उसके लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को नॉन कंसंट्रेशन का आप नहीं बना सकते। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया और उसको स्टैंडर्डाइज किया ऑक्सैलिक एसिड से, जो कि लास्ट टाइम प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हमारी इतनी कॉमन है कि समटाइम हम इसको लिखते भी नहीं है, समटाइम हम इसको इट इज अंडरस्टूड कि जब भी हमने टाइट्रेशन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें लाजमी है कि स्टैंडर्डाइजेशन की जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस कर लिया था, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट टुडे। सो वी आर जस्ट नोन कि जो भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया उसकी जो कंसंट्रेशन थी हमने स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए से निकाली, वो कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेने के लिए अब हमारे पास जो, क्योंकि हम पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं
तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो भी सैंपल है, लेट सपोज आप विनेगर सैंपल लेकर आए जिसके अंदर एसिटिक एसिड एजाइनालाइट मौजूद है, वो एसिटिक एसिड आपने लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है। अब कैसे लेंगे इसको, आप लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पाइपेट, क्योंकि वॉल्यूम ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास दो तरह की वॉल्यूम ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कि प्राइमरी ग्लासवेयर से या फिर सेकेंडरी ग्लासवेयर से। अब प्राइमरी ग्लासवेयर आर दोस्त जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे होते हैं, एंड सेकेंडरी ग्लासवेयर वो होते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो प्राइमरी में आता है हमारा ब्यूरिक और पाइपेट, सेकेंडरी में फिर सिलेंडर या बीकर, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी में आते हैं, तो उनसे बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्राइमरी ग्लासवेयर में क्योंकि हमें इसको ट्रांसफर करना है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम 20 ml की वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट भी ले सकते हैं, 20 ml की ग्रेजुएटेड पाइपेट भी ले सकते हैं। उससे आपने क्या किया, अपना एसिड ट्रांसफर कर लिया। अब इस एसिड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो पीएच मीटर होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड अटैच होता है, ठीक है। पीएच मीटर को आपने स्टार्ट किया, उसकी जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिल वाटर उसके ऊपर से हम गुजार रहे होते हैं, उसको पास कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद क्लीन करने के बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। एंड आफ्टर द हम ये ख्याल रखते हैं कि जो भी हमारा सोल्यूशन है, छोटा बीकर लेंगे अगर 20 ml है, अगर हमारा वॉल्यूम जो है ज़्यादा ले रहे हैं तो बड़ा बीकर भी ले सकते हैं, कि जो हमारा जो पीएच इलेक्ट्रोड है इसमें ग्लास मेम्ब्रेन होती है, वो ग्लास मेम्ब्रेन कम्प्लीटली इमर्ज होनी चाहिए हमारे सोल्यूशन के अंदर, ताकि पीएच इलेक्ट्रोड जो है बड़ी आसानी से हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनको सेंस कर सके। पीएच इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, एक आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है फॉर द हाइड्रोजन आयन, एंड दिस द मैकेनिज्म ऑफ द पीएच इलेक्ट्रोड हम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो वी हैव द ब्यूरिट के अंदर फिर वही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाया था, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरिट के अंदर मौजूद है। और आपने क्या किया, इनिशियली 20 ml सैंपल, उसकी पीएच आपने नोट कर ली, ठीक है। ये पीएच किस वजह से आ रही है, ये पीएच हमारे पास आ रही है ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम। जब हमने एसिटिक एसिड लिया है तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन का, उसमें जो हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं उन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी भी हमारे पास एसिड के अंदर मौजूद है उसकी वजह से उसकी पीएच आ रही है, सही है। आपने क्या किया, अब यहाँ पे जो कॉलम हमारे पास बनते हैं डिफरेंट बनते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप वाइज ऐड नहीं करते, यहाँ पे फिक्स या इक्वल रेप्लिकेट हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इक्वल अमाउंट हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं अपने सोल्यूशन में। सबसे पहले हमने जो सोल्यूशन सैंपल लिया था उसको लेके उसकी पीएच नोट कर ली, वो पीएच कहाँ आएगी, इधर आएगी, क्योंकि अभी हमने कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया। फिर आपने क्या किया, अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्यूरेट अगेन हमारा 0 तक ले लो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 1 2 से, इस वक्त 0 से स्टार्ट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि कितना वॉल्यूम हमने ट्रांसफर किया है। अदरवाइज अगर 20 से स्टार्ट करेंगे तो 21 पे आपका 1 ml होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने 1 ml एसिड के अंदर जो हमारा यहाँ पर बीकर के अंदर एसिड मौजूद है उसके अंदर 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, उसको हम हल्का सा शेक कर रहे होते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रोड जो है किसी भी वॉल से नहीं टकराया। इलेक्ट्रोड की जो मेम्ब्रेन है, ग्लास मेम्ब्रेन, दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, उसका ख्याल रखते हुए हमने इसको हल्का सा शेक करते हैं एंड उसको इक्विलिब्रेट होने का टाइम देते हैं कि जो हमारी रीडिंग है वो वापस से एडजस्ट हो जाए। इक्विलिब्रेट होने का टाइम क्यों दिया, जब हमने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा, कुछ एसिड उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, बाकी का जो एसिड है उसका इक्विलिब्रियम जो पहले से इस्टेब्लिश था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ग्लास मेम्ब्रेन, इस ग्लास मेम्ब्रेन को जो हमारी कंसंट्रेशन चेंज हुई है हाइड्रोजन आयन की उसके साथ इक्विलिब्रियम होने के लिए टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम हमें पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन के लिए थोड़ा सा उसको इक्विलिब्रेट होने का टाइम देना पड़ता है। दैट इज कि जब हमारे पास रीडिंग फ्लक्चुएट नहीं होती, एग्जैक्टली सेम रीडिंग हमारे पास आ जाती है या फिक्स रीडिंग आ जाती है, तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, पीएच को नोट कर लेते हैं। सो वी आर नोटिंग द पीएच एंड बाय ग्रेजुअली इन हमने स्मॉल इंक्रीमेंट क्या करना है, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करते जाना है और पीएच को नोट करते जाना है जब वो स्टेबल हो जाए।
ठीक है, ये तमाम आपने रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग हमें कहाँ तक लेनी है, ये कैसे पता चलेगा? हमें पता है पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक है। इनिशियली हमारे पास सिस्टम के अंदर एसिड मौजूद है एंड एसिड की पीएच जो है लेस देन 7 होती है। वीक एसिड है तो वीक एसिड की पीएच समटाइम 4, 3, 2 इस तरीके से स्टार्ट हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन की इनिशियली कितनी पीएच हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी लेसर देन 7 होगी, लेकिन बहुत लो पीएच नहीं होगी, दैट इज 1 या 2 नहीं होती वीक एसिड की, थोड़ी सी हायर होती है। तो इनिशियली आपकी यही पीएच होगी और जब ग्रेजुअली जैसे जैसे आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे वैसे वैसे पीएच में चेंज आता जाएगा। दैट इज इनिशियली लेट सपोज अगर हमारे पास पीएच आ रही है 3, ठीक है, आई एम जस्ट एग्जाम्पलरी रीडिंग आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज वी आर हैविंग 3। अच्छा, पीएच मीटर की जो हमारे पास रीडिंग या उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारे पास 2 डिजिट तक वो रीडिंग दे सकता है। लेट सपोज वी आर हैविंग द वैल्यू 3.06 एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट हमने उसके अंदर बेस डाला 1 ml, तो उसके बाद हो सकता है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, दैट इज वो हो जाए 3.26। ठीक है, अब ये जो चेंज आ रहा है ये डिपेंड कर रहा होता है एक तो एसिड की कंसंट्रेशन के ऊपर और सेकंड बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द कंसंट्रेशन, वी कैन प्रेडिक्ट द पीएच बाय द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रैक्टिकल के हो सकता है कि हम इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म किस तरीके से करना है और आपको एक्चुअल रीडिंग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है उसको यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट पीएच बाय द नॉलेज और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पीएच आपके पास आती गई। अब वो पॉइंट जिसके ऊपर सारा का सारा एसिडिक एसिड खत्म हो जाएगा, एसिडिक एसिड की वजह से ही पीएच लेस देन 7 आ रही थी। जब सारा का सारा एसिडिक एसिड खत्म हुआ उसके बाद जब मजीद 1 ml, क्योंकि हम तो ऐड करे जा रहे हैं 1 ml मजीद ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम मजीद 1 ml ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक एसिड वहाँ पे सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, लेट सपोज व्हाट वी हैव डन, ये जितना भी एसिडिक एसिड है उसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जितना हमने ऐड कर दिया है दोनों कंज्यूम हो गया। अब सिस्टम के अंदर सोडियम एसीटेट और वाटर मौजूद है। अब इसके अंदर जब आपने मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कोई भी प्रोटॉन नहीं मिला, कोई प्रोटॉन नहीं मिला। इसने क्या किए, OH एंड हमारे सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर दिए। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो हाइड्रोजन आयन दैट इज की कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन बहुत कम हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनिशियली जो हमारे पास लो पीएच आ रही थी एकदम से क्या हो जाएगा, उसमें ग्रेजुअली चेंज आएगा। ठीक है, एकदम से हमारी पीएच जो है वो बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई पीएच